Assalamualaikum students. Welcome back to our next class. In this class, we read our subject SS3. All of the students, first open your SS3 books. First, we start reading. And then we start our copy work. Open your books. Open page number 4. Open page number 4. On page number 4, our first topic is spring. First, we know that what is springs. Now I read. The earth's surface absorbs rainwater. जमीन की सतह पानी को जज़ब कर लेती है. जब बारिश का पानी होता है तो जमीन की सतह जो मट्टी वाली होती है, यहाँ मट्टी होती है, पानी जमीन के अंदर जज़ब हो जाता है. When there is abundance of rain, the water accumulates and flows. जब पानी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है तो पानी एक जगह जमा हो जाता है और बहना शुरू हो जाता है. This is known as natural springs. इसे हम कुदरती तौर पर पानी का बहाव कहते हैं. ओके, Did you know what is springs? जब बारिश होती है, बारिश का पानी जमीन के नीचे जमीन में जज़ब हो जाता है. जब वो पानी जमीन के नीचे बहुत ज्यादा मिकदार में होता है तो कुदरती तौर पर पानी बहुत ज्यादा मिकदार में जमीन के नीचे जमा हो जाता है, तो उसका बहाव शुरू हो जाता है. पानी के उस बहाव को हम नेचुरल स्प्रिंग्स कहते हैं. अंडरस्टैंड? यू कैन आल्सो सी द पिक्स ऑफ नेचुरल स्प्रिंग्स ऑन योर बुक. Next is the water from the springs is rich in minerals. स्प्रिंग्स के जरिए जो पानी बहता है वो उनके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं. एंड इज वेरी क्लीन एंड हेल्दी फॉर ड्रिंकिंग. ये पानी बहुत साफ होता है और पीने के लिए भी बहुत अच्छा होता है. Some natural springs, however, have a high contents of minerals such as sulfurs and other metals. कुछ नेचुरल स्प्रिंग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी बहुत ज्यादा, जिनके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर्स एंड और दूसरे मेटल्स. ओके, द वाटर फ्रॉम सच स्प्रिंग्स इज गुड फॉर बाथिंग बट नॉट फॉर ड्रिंकिंग. पानी के वो स्प्रिंग्स, उन स्प्रिंग्स का पानी जिनके अंदर सल्फर बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, हम उस पानी को बाथिंग के लिए या अदर यूजिंग के लिए तो कर सकते हैं, बट दैट वाटर इज नॉट एबल फॉर ड्रिंकिंग because this water is rich in springs, sulfurs. Okay, our next topic is rapids. What is rapids? Now I read this paragraph. When a river flows downstreams through rocks and cliffs, जब दरिया चट्टानों से और ऊंचाई से नीचे की तरफ बहते हैं, the water comes down with a great force. तो पानी बहुत ताकत के साथ पहाड़ों से या चट्टानों से नीचे की तरफ आता है. and it moves with great speed. और ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करता है, हरकत करता है. This section of a river is known as rapid. दरियाओं के इस तरह के बहाव को हम रैपिड या बहुत तेजी से दरियाओं का बहाव कहते हैं. It is extremely dangerous to swim or sail a boat in these waters. इस तरह के पानी में तैरना या इस तरह के पानी में बोट्स को सेल करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है. Okay, now I draw a picture of river rapids. Look at the board carefully. Make a box. Okay.
then make a slide such like that. Okay, this is the flowing of river. This is the flowing of river. Okay, and at that place, the water of river is rapid flowing. Okay, because in that place the water of rivers is rapid flowing. जब पानी ऊपर से नीचे को आएगा, यहाँ से ये ऊपर है, यहाँ से नीचे हो रहा है, फिर यहाँ से ऊपर नीचे, इस प्लेस पर और इस प्लेस पर पानी की मिकदार बहुत, पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, पानी बहुत स्पीड से नीचे जाता है. And then these are the parts of rocks. This is the part of soft rocks. यहाँ पर नरम चट्टानें हैं. ओके, और यहाँ पर हार्ड रॉक्स हैं, सख्त चट्टानें हैं. ओके, again this is the part of soft rocks, and this is the part of hard rocks. We see that where the part of soft rocks, the water flows slowly, and where the part of hard rocks, the water flows rapidly. Through this diagram, we know that how the rivers rapids flowing. Okay, I hope all of you understand. You can also draw this diagram on your SSC SIVA copies. Next, come to the point, natural vegetation. Our next heading is natural vegetation. Natural vegetation. Now I read this paragraph. Life on the planet Earth breeds and exists in different climatic regions. जमीन पर रहने वाले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के environment में रहते हैं, मुख्तलिफ तरह की आबोहवा में रहते हैं. The physical surface of the land has many variations from dense forest to barren deserts due to difference of climate, terrains and soils. जैसे कि हम डिफरेंट क्लाइमेट में रहते हैं, इस तरह हमारी जमीन की सतह जो है वो भी डिफरेंट है. सम डेजर्ट्स हैं, सम फॉरेस्ट ज्यादा है, सम पार्ट्स में डेजर्ट्स है, सम पार्ट्स में फॉरेस्ट है, कुछ जगह पर जमीन बंजर है, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा जरखेज है. इस तरह डिफरेंट प्लेसेस पर जमीन डिफरेंट काइंड से एग्जिस्ट कर रही है. These factors decide the kinds, quantity and time period of plant to grow. जमीन का डेजर्ट्स का ज्यादा होना, जमीन का बंजर हो जाना या जमीन का सरफेस होना, इससे हमें ये पता लगता है कि जमीन किस काइंड की है, वहां पर मिट्टी किस किस्म की है और वहां पर पौधे किस मिकदार से या किस तरह ग्रो करेंगे. बिकॉज एज द सॉइल इज गुड, द प्लांट्स ग्रो इजीली. इफ द सॉइल इज नॉट गुड, सीड्स कैन नॉट गेट द ऑल फेवरेबल कंडीशंस, द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन दैट काइंड ऑफ सॉइल. ओके, these regional classes on the basis of predominant vegetations are called biomass. The biomass includes deserts, forests, grasslands, shrublands and etc. is that. इसी तरह जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेशंस होती है. मुख्तलिफ पार्ट जमीन के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं. इन पौधों के अंदर, इन पौधों को हम डेजर्ट्स पे भी, कुछ पौधे डेजर्ट सहरा में भी उगते हैं, जैसे कांटेदार पौधे, जिन पौधों को पानी की मिकदार कम चाहिए होती है वो सहरा में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं. जबकि कुछ जंगलात या कुछ दरख्त, कुछ ग्रासलैंड्स, कुछ पौधे जिनको पानी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है वो फर्टाइल सॉइल के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, वो डेजर्ट में नहीं अच्छे से ग्रो कर जाते हैं. इसी तरह डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल में
different kinds of plants can grow easily. Okay, our next topic is desert. A desert. Now I start the reading of this paragraph. Desert. A desert is a land surface that is dry and hot. डेजर्ट सहरा बेसिकली जमीन का वो हिस्सा है जो बहुत ज्यादा, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जो बहुत ज्यादा खुश्क होता है, वहां पर पानी की मिकदार बहुत कम होती है और बारिश वहां पर बहुत कम होती है. It is a vast area of sand and gravel which gets little or no rainfall in the air. यहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में रेत मौजूद होती है और बहुत कम यहाँ पर बारिश होती है. बारिश या तो होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है. As the weather is changing in the world, the deserts are enlarging. जैसा कि डे बाय डे वेदर चेंज हो रहा है, मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं ड्यू टू पोल्यूशन की वजह से. पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है, दरख्तों को लोग कटिंग ज्यादा कर रहे हैं, बारिश कम मिकदार में हो रही है. उसी तरह डेजर्ट का एरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है. दिस इज बिकॉज देयर इज लेस रेनफॉल ईच ईयर. उसकी वजह यह है कि हर साल हमारे मुल्क में बारिश बहुत कम होती है. जब बारिश बहुत कम होगी तो जमीन जो है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी, वहां पर पानी की कमी होगी और जमीन ड्राई हो जाएगी और उससे डेजर्ट का जो पार्ट है वो इनलार्ज होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा. आई होप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. टीचर. Yes, if you ask me something, you can call me. Yes. टीचर आपकी 13 और 14 डेट की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही. मैम Yes. मैम रिकॉर्डिंग कैसे निकाल. मैम हमने होमवर्क सैटरडे को करवाने सबमिट. मैम रिकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं. हम सैटरडे को काम जमा करा था, हमें सैटरडे से बाद में मंडे वाले दिन छुट्टियां में. Students, when you open your YouTube, open White Rose channel on YouTube, you can download your videos and the recordings of your lectures that you have been missing. Okay? और सैटरडे को आप अपने स्कूल, अपने कैंपस से अपने टेस्ट कोलेक्ट कर सकते हैं. जो पूरे वीक में मैंने आपको काम करवाया है, उसका मैंने टेस्ट बनाया है, वो आप सैटरडे वाले दिन अपने अपने कैंपस से ले सकते हैं. तो आप उसको संडे में सबमिट फिल अप करके टेस्ट को आप मंडे वाले दिन स्कूल में अपने कैंपस में सबमिट करवा सकते हैं. ओके, नाउ यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ओपन योर SST receiver copies. Now we start the next question. Open your SST receiver copies. I raise the board. I hope all the students understand this diagram. Now ready your SST copies. Right. Lesson number 1. Topic landforms. Make a heading of long question. In our last day's lectures, we have done question number 3, question number 4, and question number 5. Now we have do our question number 6. Now I write the question. What are forests? Forest means जंगलात. जंगलात या जंगल क्या होते हैं? Name a few
types name a few types of a forest. This question has two parts. First part is what are forest. सबसे पहले हमें ये बताना है जंगलात क्या होते हैं. In the next part, name a few types of forest. कुछ जंगलात के टाइप्स बतानी है, तो टाइप्स का नेम बताने हैं कि जंगलात कौन कौन सी काइंड्स के होते हैं. Now I write the answer of this question. Forest is an area of land dominated by trees. Okay, the answer of the first part of this question is that forest is an area. जंगलात जमीन का वो हिस्सा है, एरिया ऑफ लैंड जमीन का वो हिस्सा है, डोमिनेटेड बाय ट्रीज जो कि दरख्तों के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पर ट्रीज बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं. इज इट क्लियर? Okay, now I write the types. Name the types of forest. The types of forest. Forests are coniferous forest. Second one is Acacia forest. And third one is rainforest. Okay. Again, I revise the answer of this question. What are forests? जंगलात क्या होते हैं? Forest is an area. जंगलात वो जमीन है, एरिया ऑफ लैंड जमीन का वो हिस्सा है, डोमिनेटेड बाय ट्रीज जो कि दरख्तों के तौर पर जाना जाता है, जहां पर ट्रीज बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं. द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर जंगलात के डिफरेंट काइंड्स हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एजिया फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट. These three names are the types of forests. Okay, students. I hope all of you understand and also note down the answer of this question. Now, students, show me your copies where you write the answer of this question. Yes, students, show me your copies. अटेंडेंस मार्क करते मेरी पहले भी एब्सेंट आई है, मेरी अटेंडेंस लगा दे, मार्क ना दे, कुछ और कह देना. बोलो. Have you any question related our? मेरी अटेंडेंस. Yes. मैम. Yes. जो कल छुट्टी है मैम, रमजान में उसकी सोशल स्टडी की बुक यही है. Copies here you write the answer of this question. Excuse me, teacher. बता दे मेरी. Excuse me, teacher.
Teacher, my name is Pramparna. I have Okay, done. very good. Yes. Ghulam Fatma, very good. Any other students? Ghulam Fatma, very good. Excellent. Any other students? Show me your copy. Have you done your work? What is okay, Mohammed Zain, very good, excellent. Abdul Manan, show me your copy. Mohammed Zain, very good, excellent. Okay, students, you also draw the diagrams of river rapids on the next page of your SS3 SIVA copies that I will draw on the board. I hope you all of you understand and easy to draw the diagrams of river rapids. Okay. Now I write the diary. Lesson number 1. Reading page 4 plus long question. Question number is 6. Sivaklan. Draw a diagram of river rapids as H verb. Okay. On Monday, I will check your H verbs where you draw the diagrams. Okay. I hope all of you understand. So our today's work. Now our this class time is over. After 5 minutes, you can again join your meetings. Okay, take care.